Hi guys, so my name is Zaina Khan. I'm currently an MS1 at Dow Medical College, and this is. Hello G, my name is Shyam and I am MS1 at Dow Medical College. And we're basically here at HUSER to have a talk about how we approached MCAT as an A level student versus an FSC background student. So, yeah. So, I think first we should just introduce ourselves. What was your college and stuff? And what were your grades? I was from AKHSS, Aga Khan Higher Secondary School, Karachi. I was in DHM CAT Stream 1 Batch 1 at USES और मैं फॉर्चुनेटली यूज़र्स आ रहा है भाई यूज़र्स पे सबको पता है 10th मेरिट नंबर टॉप 5th कराची में भाई चौड़ में हूँ मैं थोड़ा हाँ लेकिन बनती है भाई चौड़ बनती है इस बात की बाकी है ना Okay, so I'm from Nixter College और हमारे marks कट जाते हैं equivalency बनते हैं. So I'm not top 10, but I'm also at Dow Medical College. So yeah, I'm from Nixter College and then I did my O levels from Malaysia. So you guys wouldn't know that school, but a lot of people like approach के marks क्या like what grades do you need to have to get into a government university. So I feel like there's a lot of diversity that I have observed regarding O and A level grades. I won't tell my O and A level grades because that would scare you guys. But like I have friends who also had O levels में B's or like A level में एक दो B. Obviously like not all B's can get you that equivalency. But yes, like some B's it's fine. It's fine. Now what is your main focus, like what should be your main focus is basically MCAT because MCAT is 50%. So that's why we're just going to talk about MCAT right now. जो बात है So for you, coming from an FSC background, what do you think, like, how did you approach MCAT? Because I feel like it's a bit easier for you guys, that's what we think. it is क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास FSC की किताबें हैं उसी से MD कैट बनता है like compared to A levels I think so हमारे पास it's much easier and being from an AKUEB Khan University Education Board मुझे लगता है कि we had क्योंकि हमारे पास AKUEB में it's they don't teach us one board books हमारे पास सिंध बोर्ड भी पढ़ाई जाती है हमारे पास फेडरल बोर्ड भी पढ़ाई जाती है और हमारे पास पंजाब बोर्ड भी पढ़ाई जाती है तो फॉर मी इट वाज मच ईजियर मुझे अभी भी याद है फर्स्ट MD कैट में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करी थी बिकॉज था कि हाँ भाई कि हमारा तो रिकंडक्ट भी हुआ था तो फर्स्ट MD कैट में मैंने करी थी मेहनत लेकिन जब फर्स्ट देकर आया था तो मुझे पता था कि भाई ये ऐਵੇਂ ही सवाल आने वाले हैं तो फिर सेकेंड MD कैट में आई वाज लाइक मच मोर चिल लेकिन हाँ ये हर किसी के साथ सिचुएशन नहीं होती क्योंकि मैंने तो FSC अच्छी पढ़ी हुई थी आई हैड गुड मार्क्स आई हैड अ गुड कॉलेज और थोड़ा बहुत भाई पढ़ाई में था भी अच्छा ज़्यादा तो मेरिट नंबर 10 मेरिट नंबर 10 देखो अगर मेरिट नंबर 10 चाहिए तो और अगर FSC अच्छी नहीं पढ़ी हुई तो भाई रगड़ा मारना पड़ेगा फुल मारना पड़ेगा पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा दिन रात उठने में मैंने नहीं फर्स्ट MD कैट में भी मैंने इतना रगड़ा नहीं मारा था आई यूज टू स्टडी लाइक फॉर 6 to 7 आवर्स लेकिन वो भी नॉट कंसिस्टेंटली लाइक अगर एक दिन मैंने 4-5 घंटे पढ़े हैं तो अगले दिन आई विल कीप लाइक मच मोर स्मॉलर गैप कि 2-3 घंटे पढ़ूँगा बाकी लेकिन ऑल इन ऑल इट वाज मच मोर ईजियर मुझे ऐसा लगता है कंपेयर टू A लेवल स्टूडेंट क्योंकि काफ़ी हमारे A लेवल्स के अभी बैठे हुए हैं हमारे साथ उधर एंड दे लाइक स्टडीड मोर देन मी मैं सीधी बात करूँगा उन्होंने मुझसे ज़्यादा पढ़ाई करी थी बट दे स्टिल गॉट लेस मार्क्स देन मी इवन इन MD कैट तो मुझे लगता है कि फॉर एन बीइंग फ्रॉम एन FSC बैकग्राउंड इट मच मोर ईजियर बट नॉट इन एवरी केस सिनेरियो क्योंकि काफ़ी लोगों ने FSC अच्छी भी नहीं पढ़ी होती तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस के भाई being from an A level? Yeah, so I feel like it's very different for an A level student because obviously जब हम CIs दे रहे होते हैं that's all we're studying for because हमारे लिए CI का grade बहुत matter करता है that's what we've studied for 2 years हमने कोई book नहीं खोली होती although आपको काफ़ी seniors बोलते हैं कि आप अपनी छुट्टियों में books खोल लो देख लो थोड़ा सा but मैंने तो नहीं खोली थी so I don't know about other people तो as soon as I got I like remember it was 19th May was my last CI and after I took a 2 days ka break and then I opened the MD CAT books and when I opened it for the first day was like fine, second day fine, third day it really hit me because itna sab kuch aapne like 3 subjects ki books
2 सालों की आपने करनी है और उसमें भी काफ़ी मतलब एक्सटेंसिव लिखा होता है, बहुत डिफरेंट होता है जो हमने पढ़ा हुआ है। बायो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इट्स वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी स्टडी। फिज़िक्स वगैरह में भी थोड़ी सी ओवरलैप्स थे, एंड आई फील लाइक the one thing that misled me a lot was कि my seniors told me that your physics and chemistry is very similar to MCAT chemistry and physics, and when I opened that I had this expectation कि बहुत similar होगी, but जब मैंने खोली तो वो नहीं थी। उसमें बहुत weird formulas हैं, बहुत different formulas हैं, they approach stuff differently, vectors हमने इस तरह कभी पढ़े भी नहीं हुए। हमारे वो math side पे आते हैं but physics में नहीं आते। सो इवन दैट आई वाज लाइक मुझे तो कहा था सिर्फ बायो पढ़नी पड़ेगी, बट ये तो केम और फिज़िक्स भी यहाँ पे उल्टी ही कोई चीज़ चल रही है यहाँ पे। सो बट देन उसमें ये होता है कि फॉर ए लेवल्स इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, एंड स्पेशली बिकॉज अगर आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप पे, एवरीवन's लाइक रिपीटर, 1 साल के 2 साल के, उनको तो पूरी बुक्स रटी होती हैं। देयर लाइक कि इस सवाल का जवाब बताओ, एंड देयर लाइक कि नहीं आपने ये सवाल गलत किया है, ये यूँ जवाब होगा, एंड देन आप वहाँ बैठे होते कि मैं तो अभी बुक का दूसरा चैप्टर पे हूँ, मैं ये कैसे होगा। सो बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनफेमिलियरिटी। आपने ऑब्वियसली बुक पढ़ी होती है, हमें शुरू से शुरू करना पड़ता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, बट इफ़ यू आर डेडिकेटेड एंड इफ़ यू आर मोटिवेटेड ऑब्वियसली। अब जो डिफरेंस आता है आई गेस वो यहाँ पे आता है कि यू आर सेइंग यू स्टडीड फॉर लाइक 4-5 आवर्स अ डे, 2-3 आवर्स इस तरह। वी डिडंट हैव अ चॉइस। मैं सुबह 8:30 उठती थी, मुझे पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था, 2 बजे ब्रेक लेती थी, 2 से 3 तक ब्रेक। अगर उससे 15-20 मिनट ज़्यादा हो गया फिर मुझे गिल्ट होने लग जाता था, फिर मैं फिर पढ़ती थी 9 बजे तक, फिर खाने की घंटे की ब्रेक, फिर 12 बजे तक फिर सो जाती थी, बिकॉज आपको आपसे और रट्टा नहीं लग सकता। एंड फॉर अस वी आर नॉट kids that can rote learn, because in CIs it's very different। आपकी एक मार्क स्कीम होती है, आपको उसके हिसाब से सवाल के जवाब लिखने होते हैं, एंड लाइक थोड़े से सवाल करते करते you get the gist of it कि how it's going to be done, there are certain pointers that you need to remember। MDCAT के questions like आप जितने ज़्यादा करते थे उतने के सुई गैस कब डिस्कवर हुई, अब ये मैं एक दफ़ा बुक पढ़ के मैं कैसे याद करूँ, तो I had to like keep going over and over the books and stuff। So yeah, but what was like your studying strategy? Like, did you make notes or क्या किया? ओके, तो जैसे मैंने बताया कि भाई आई डिडंट स्टडी दैट मच। मैं 4 से 5 घंटे पढ़ता था ऑन एन एवरेज। Couldn't be me। भाई देखो लाइक अब रोट मेमोराइजेशन की तो मेरी भी आदत नहीं है, बिकॉज इन AQEB आप रोट मेमोराइजेशन भी AQEB में आप नहीं करते हो, थोड़ी बहुत होती है, बट इट्स नॉट लाइक कि सिंध बोर्ड या आपके पास है ना फेडरल बोर्ड की तरह बहुत सारी रोट मेमोराइजेशन होती है। बिकॉज अगर आप करने पे भी आए ना, आप 3 बुक्स उठाओगे, आप पंजाब, सिंध और फेडरल की बुक्स उठाओ, तीनों में डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। आप सुई गैस वाली बात ढूंढो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी तो पॉपुलेशन डेंसिटी सब में डिफरेंट लिखी हुई है। भाई हर चीज़ तीनों, एक तो नेशनल करिकुलम है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। भाई बना लो एक नेशनल MDCAT करने की बात करते हैं, बट सेम सिलेबस नहीं होगा किसी का। भाई पता नहीं कैसे करेंगे लोग। लेकिन सीधी बात है कि फॉर मी मेरी स्ट्रैटेजी वाज वेरी डिफरेंट। मैं आता था इधर, यूज़र्स आई कांट स्टडी एट होम, अकेले कमरे में भी बैठ के नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 100 चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे कमरे में डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा मैं। आई यूज़ टू कम टू लाइब्रेरी, यूज़र्स की लाइब्रेरी आता था मैं। आई यूज़ टू कम हियर एट अबाउट 1 or 2 इन द आफ्टरनून। 4-5 घंटे इधर बैठ के पढ़े, रात को जाता था, रात को जाके आई स्लीप रियली लेट, मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती। तो अगर रात को मैंने खोली किताब तो खोल ली, नहीं खोली तो नहीं खोली। अबाउट मेकिंग नोट्स, आई डिडंट एक्चुअली मेक नोट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई MDCAT में नोट्स बनाऊं किस चीज़ के, रट्टों के नोट बनाऊं बैठ के, भाई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। बस आप क्या बनाओगे उसमें नोट्स? आप नोट्स, हाँ ऐसे अगर आप इसको नोट्स कहते हो कि भाई आपने डेट्स वगैरह की एक डेट शीट बना ली, या आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज लाइक लिख दिए, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिख लिए, ये सारी चीज़ें कर ली, तो अगर आप इसको नोट्स बनाने की कैटेगरी में डालते हो तो हाँ ये चीज़ें तो करी थी, बिकॉज इसको आप बगैर लिखे याद नहीं कर सकते। तो ये किए थे काम। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग नोट्स अबाउट एवरीथिंग, कि हाँ भाई छोटे छोटे टॉपिक का हमने बना दिया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूँ तो थर्मोडायनेमिक्स ये है, ऐसे नोट्स नहीं बनाए मैंने कभी। आई फील लाइक
मैंने तो नोट्स बनाए थे बिकॉज अब मैं जब पढ़ रही थी, मैं एक चैप्टर पढ़ती थी और उसके बाद अगले दिन मैं दूसरा खोलती थी, मैं पहला सब भूल जाती थी क्योंकि मैंने कभी वो चैप्टर ज़िंदगी में अपनी देखा ही नहीं हुआ। तो मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने इस तरह नोट्स बनाए थे, मैंने पूरी पूरी बुक लिखी थी बैठ के। तो लेकिन उसमें ये था कि एक दफ़ा मैंने जब लिख लिया था तो मुझे बार बार बुक नहीं खोलनी पड़ी थी बिकॉज़ वो बुक देख के ना मुझे कुछ हो रहा था, मुझे होता था ये पूरी बुक मैंने अब करनी है। तो एक्सक्यूज़ मी, तो मैं अपने नोट्स बनाए थे मैंने, एंड देन फ्रॉम दोज नोट्स मैं पढ़ा करती थी कि अच्छा चलो मतलब आज मैं इस टॉपिक की रिविजन कर दूँ, इस टॉपिक की। बट आई फील लाइक व्हाट रियली हेल्प मी वाज रिकॉल, विच वाज फ्रॉम डूइंग क्वेश्चंस। मैंने वो ख़रीदा था, वो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस फजूल भी हैं, बट आई फील लाइक वो इसलिए अच्छा बिकॉज फॉर फर्स्ट टाइम रीडर ऑफ द बुक, मैं एक दफ़ा अगर एक चैप्टर पढ़ती थी तो फ़ौरन मैं अगर वो क्वेश्चंस करूँ तो उसमें से बिल्कुल बुक लाइंस उठा के क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो वो जो मैं पढ़ रही होती थी वो बहुत जल्दी मतलब मुझे वहीं पर अप्लाई हो जाता था, तो वो रिकॉल से मुझे याद रह रहा था। बट नोट्स ओनली फॉर बायो, फिज़िक्स तो आई डेंट इवन ओपन द बुक, आई फील लाइक इट वाज अ वेरी स्टूपिड बुक, सॉरी, बट वो बहुत ही फजूल लिखी हुई बुक थी। तो पर इट वाज लाइक मतलब इतना डीप नहीं था वो। तो फिज़िक्स के लिए आई यूज़ टू गो टू यूट्यूब, वहाँ पे जो लेक्चर्स होते थे, देयर इज़ लाइक फिज़िक्स फ्रेंड्स, फिज़िक्स विद सर अरफात खान, या तो वो 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं, मतलब वो 2x की स्पीड पे देखो तो आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन जस्ट डू क्वेश्चंस। यूसर की बुकलेट्स के भी फिज़िक्स के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो आई यूज़ टू डू दोज एज वेल। आई फील लाइक एज एन ए लेवल स्टूडेंट व्हाट्स वन मोर थिंग, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था कि जो आप कर रहे हो क्या वो सही है या नहीं, यू फॉल फॉर अ लॉट ऑफ ट्रैप्स। ये दिस इज़ वन थिंग दैट आई लाइक, दिस इज़ माई मिस्टेक दैट आई मेड। मैं किसी को देखती थी कि अच्छा चलो मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ बट ये बंदा उस एकेडमी में ये काम कर रहा है तो वो शायद ज़्यादा बेहतर हो, जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं होगा, तो फिर मैं वो बुक भी ख़रीद लेती थी। फिर मैं देखती थी कि नहीं वो बंदा वो कर रहा है, वो कह रहा है वो बहुत अच्छा, तो मैं वो भी ख़रीद लेती थी। तो आई फील लाइक यू शुड जस्ट स्टिक टू वन पाथ, इवन इफ़ यू आर जस्ट रीडिंग द बुक एंड डू इट एंड स्टिकिंग टू लाइक वन क्वेश्चन बैंक, दैट्स ऑल्सो मोर देन इनफ, बिकॉज आप बुक से ही सब कुछ आता है। अगर डाओ पेपर नहीं बना रहा तो, बिकॉज डाओ ने बहुत आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें दी थी, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या दिया था जो फर्स्ट वाला पेपर था। आई वोंट से दैट डाओ ने बस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दिए थे, आई डू एग्री विथ यू, लेकिन आप अगर वो बुक के जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े थे ना, डाओ ने उधर तो से मैं क्यों पढ़ूं कि कौन सी गाय कौन सा दूध देती है, लाइक सॉरी गाइस। जो बात है पढ़ना वो तो हम लोग भी तुक्के मार गए थे, कॉलिंग दैट कि भाई बुक से बाहर आया था, आई वोंट एग्री विथ यू ऑन दैट। हाँ सिलेबस से बाहर। बट अगेन ये वो वाली जगह है जहाँ पे यू हैड एन एज, बिकॉज एज एन ए लेवल स्टूडेंट मैंने जो स्पेक में लिखा था वो कर लियो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। यू गॉट एन एज ओवर मी बिकॉज तुमने वो पढ़ा हुआ था, राइट? So yeah, so this is like one thing where you had an edge, but victim card बहुत हो गया। but yeah, but I do feel like if you're going on one path, if you're following one path, then just follow that path. अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप फिर भी अपने उस पर चलो, बिकॉज बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं कि नहीं यू नो लाइक मे बी दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग बेटर, दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग बेटर, मैं ये कर लेता हूँ, एंड देन यू जिस पाथ पे आप चल रहे हो वहीं से आप डिविएट हो जाते हो। सो आई फील लाइक फॉलोइंग वन पाथ इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी, जो आपके लिए काम करे। फॉर माई फ्रेंड्स केम टू ह्यूस्टर, दे टुक क्लासेस, फॉर मी इट डिडंट वर्क, मेरे लिए बहुत बोरिंग हो जाता था कि मैं पूरा दिन बैठ के क्लासेस दूँ, उससे बेहतर लाइक यू सेड यू कम एंड स्टडी इन द लाइब्रेरी, I used to study at home with a friend, so that kept me in check. So I feel like whatever works for you वो आपको पहले महीने में समझ आ जाती है। एंड MD-CAT के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इस साल कब हो रहा है? सितंबर में? It's in September. I feel like September, yeah. So I feel like you have a lot of time. The first month would be trial error. You would just like see कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। कुछ लोगों के लिए नोट्स काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए नोट्स नहीं काम करते, कुछ लोग डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं। But what I did as an A-level student, what really helped me was YouTube videos and just going through the book. Because और आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो as you said it's just रट्टा। तो आपने बस बुक को हाईलाइट करके बुक से ही पूछना है। वो किसी भी लाइन जो आपको सबसे फजूल डायग्राम लगेगा ना कि लाइक दिस इज़ द मोस्ट इररेलेवेंट डायग्राम, ये तो कभी पूछ ही नहीं सकते, वो उसी के अंदर से जिस तरह मुझसे पूछा था कौन सी गाय कौन सा दूध देती है, इट वाज लाइक इररेलेवेंट इन द फर्स्ट MD-CAT। बट या इस तरह की चीज़ें। सो या आई फील लाइक बुक के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। बट एज एन A-level स्टूडेंट
recall helps a lot. Like buy as many, not as many, but invest in good MCQ books. Online बहुत सारे PDFs मिल जाते हैं. There is like compiled Sindh के बहुत सारे MDCAT के वो past year question का एक पूरा PDF है, वो भी अच्छा है. Just keep on doing questions. That's what basically helps you with your recall. And MDCAT में question repeat भी होता है. MDCAT में Along बहुत the repeat होता है. along the same lines. So if you're done, मैंने 2002 तक के शायद सारे past papers किए थे. I did it दो till तीन दफ़ा. 1999. मैंने Yeah. वही. मुझे अभी भी याद है, मैंने पहले MDCAT में कहा था मैं सारे MCQs करूँगा. एज यू सेड MCQs बहुत हेल्प करते हैं. जितने ज़्यादा आप MCQs करोगे आपको उतना ज़्यादा पता चलेगा. तो इट वॉज लाइक जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे बुक मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा आपको लाइक बेनिफिशियल होगा कि भाई. I feel like even for A-level students, like कुछ चैप्टर्स ऐसे थे बिकॉज आई वुड फोकस मोर ऑन बायो में ज़्यादा रट्टा होता है. केमिस्ट्री वगैरह में जो रट्टा है वो तो फिर मैंने गिव अप कर दिया था बिकॉज वो रट्टा मुझे पता था मुझसे नहीं लग सकता. वो जो सारी वैल्यूज़ वगैरह हैं वो तो हमें तो बिकॉज ए लेवल्स में एक पूरा वो मिलता है, चार्ट मिलता है, तो उसमें वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं. तो मुझे पता था कि अगर मैं वैल्यूज़ याद करने में टाइम वेस्ट करूँ तो फिर और मुझसे कुछ भी नहीं होगा. सो फॉर बायो बेसिकली some chapters you'll read once and you'll feel like कि हाँ ठीक है ये तो सही है, but लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बार बार पढ़ने होते हैं. इस दफ़ा एनिमेलिया निकाल दिया उन्होंने, जो कि बहुत अच्छी बात है बिकॉज एनिमेलिया में बहुत रट्टा था, उसका पूरे वेब्स वगैरह बनाने पड़ते थे. बट अगेन जो इट्स लाइक बेस ऑफ बायो यू कांट चेंज, बट येस वहाँ पे बहुत रट्टा है. मतलब इस सेंस में रट्टा है कि रेड कोरल्स यूज़ करते हैं हकीम इन चीज़ों के लिए. अब वो भी अगर आप उस वक्त इफ़ यू आर रीडिंग इट इन द बुक यू आर लाइक ओके दिस इज़ लाइक अ irrelevant पॉइंट, मतलब ये नहीं आया, ये क्यों देंगे. लेकिन फिर जब आप पास पेपर्स करते हो वो यही वाला पॉइंट दिया हुआ है. सो you need to read it like 2-3 times if you want to make notes of like, but like again if you want to make notes of everything because वो जो आपको irrelevant point लग रहा है वो भी relevant हो सकता है. और वो ये नहीं देखते irrelevant क्या है. I feel like वो बस बुक खोलते हैं, वो हाथ लगाते हैं, वो बोलते हैं ये लाइन उठा के दे देंगे और वो ये दे देते हैं. वो वही करते हैं ना हम लोग, लाइक चिट्स डालते होंगे अंदर डब्बे में, निकालते होंगे हाँ भाई आज बच्चों को ऐसे हम लोग तंग करेंगे. Genuinely, yeah. MDCAT वाले बहुत तंग करते हैं ऑनेस्टली. फर्स्ट टाइम सेकंड MDCAT वाज गुड. सीवा ने जो करवाया था आई वाज रियली इम्प्रेस क्योंकि उन्होंने सिलेबस से आउट नहीं दिया था एंड द क्वेश्चन वाज लाइक रियली रेलेवेंट एंड ऑल कि हाँ भाई समझ आ रहे थे कि भाई ये काम की चीज़ें लग रही हैं. लेकिन जो हमें उन्होंने दिया था डाओ वालों ने जो बनाया था, वी स्टडी इन डाओ, हम लोग डाओ खाना, डाओ बहुत अच्छा है. मैं तो कुछ भी नहीं बोला, मैं तो कुछ भी नहीं बोला भाई देखो डाओ बहुत अच्छा है, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बात करते, आप समझदार हैं. मैं तो कुछ भी नहीं बोला. बट या सो I feel like the final thing that I would like to say to the A-level kids is कि firstly stick to one path. If you feel like you can self-study then just self-study. अगर आपको लगता है you need to join an academy, don't keep on switching because obviously then आपसे कोई भी चीज़ सही तरह नहीं होती. एक चीज़ पकड़ो and then yes read the books. For physics I did not read any book because I feel like the book confuses you as an A-level student, like it confused me. So don't read the book for physics. For chemistry you do need to read the book. For chemistry you read the book. जो reactions देखें I feel like वो भी याद करने होते हैं. Organic chem के reactions write it down. I feel like I only used Husserl for one thing which was organic chem के lectures because I couldn't wrap my head around it. And for that I basically मैंने वो सब reactions लिखे थे और याद किए थे because there's no other way to go around it. And for bio I read the book 2-3 times. I feel like इतना टाइम होता है till the end कि आप बुक को 1-2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो. And then बुक को पढ़ने से कुछ भी नहीं होता. वही बात है कि इन दी एंड जितना रिकॉल करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी. सो यू कैन यूज़ Husserl क्वेश्चन बैंक. इंग्लिश के लिए यू कैन ऑल्सो लाइक वॉच बिकॉज the English that we study is very different from the English that they ask us. And I feel like जिन्होंने अभी पूछी थी वैसे इस MDCAT में I don't agree with my score because English में पता नहीं क्या किया है. मतलब मेरे सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही कटे थे. मेरे भी इंग्लिश में कटे हैं, मेरे सब फ्रेंड्स के इंग्लिश में कटे हैं. So we don't know what did they do. अच्छा मेरे my score was really good, so I got 185. You just had to say it guys, you just had to. शुरुआत से ही अपनी तारीफें कर रहा हूँ. समझ नहीं आना, मैं कुछ और बोल ही नहीं रहा. अच्छा नहीं आई गॉट 185 और मुझे अभी भी पता है, मुझे अभी पक्का याद है मेरे 7 MCQs इंग्लिश में गलत हुए. Yeah, same around about that. 7 MCQs इंग्लिश में गलत गए और मैं कह रहा हूँ भाई ये कैसे गलत हो गए. मैं दिन ये ऑनेस्टली माना सही है यार, लाइक
हो सकता है हमसे भी गलती है, लेकिन अब नम्स दिया था या वो तो खैर बहुत ही बुरा भाई, था। नम्स अच्छा, मेरा नम्स अच्छा गया था, लेकिन इंग्लिश नम्स की या वो वो तो भी बहुत बुरी मैं थी, तो वो भी तुक्का मार बहुत के आई बुरी थी। थी भाई। इंग्लिश का पेपर हमारा नम्स में या एमडी कैट में अच्छा कहीं नहीं है। फर्स्ट एमडी कैट में अच्छा गया था, फर्स्ट एमडी कैट में मेरा सिर्फ इंग्लिश में 1 गलत गया था, बट सेकंड एमडी कैट में मेरे इंग्लिश में 7 गलत गए थे, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा यार अच्छा मेरे फिजिक्स में 1 भी गलत नहीं गया या बिकॉज इसलिए गुस्सा फिजिक्स आ रहा था बिकॉज लाइक आपने पूरा टाइम लाइक दिया मुश्किल सब्जेक्ट्स को, जो कि बायो केम फिज़िक्स, ये सब ये मेन है कि इसमें चलो कहीं ना कहीं चला जाएगा मार्क, बट गए सारे ऐसे लॉजिकल और उसमें इंग्लिश में. But I feel like if you're an A-level student, because I can like speak from that perspective, if you're well read, if you watch Netflix or whatever, if you like watch anything, आपकी vocab वगैरह already it's nice. So like don't spend time on it. हाँ वो जो active passive ये because हमने तो पता नहीं कब किए थे, मैं तो कभी अपने स्कूल में भी ये नहीं पढ़ा. हमें भी नहीं पढ़ा, AQAB में भी नहीं पढ़ा या तो आई फील लाइक बस उसके लिए भी यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं ऑनलाइन, और लाइक एनी अकेडमी दैट you don't need to join an academy, but even if you do, like वो आपको notes वगैरह दे देते हैं. So English is not something you need to worry about a lot. So yeah, but like yeah, bio, chem, physics इन पे focus करो. Physics के लिए maintain like a formula sheet obviously. If you can't maintain it, join WhatsApp groups. Don't listen to what people are saying on WhatsApp groups. वो बहुत मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत पढ़ रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता. Don't fall for that, but the resources they share, like just go to the PDF section on the WhatsApp group और बस PDFs देख लिया करो कि क्या share कर रहे हैं, because उसमें like कुछ formula sheets वगैरह बच्चे share करते हैं which are like really really helpful. But otherwise yeah, I feel like that's it. Talking about WhatsApp groups, मुझे अभी भी याद है like अच्छा बंदे ऐसे ऐसे सवाल भेजते थे या कि ये तो पढ़ा ही नहीं हुआ, ये कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ से आते हैं सवाल, Yeah. और इतने हार्ड सवाल, और वो लोग सॉल्व भी करके बताते थे लोग. Let's just sum it up. So for A-level students, I feel like again I'm gonna reiterate that follow one path. If you feel like going to an institute helps you, keeps you motivated, do that. If you feel like studying with a friend motivates you, do that. But you should know that you are competing with people who are giving the MDCAT for the second time, for the third time. You are competing with people who study from these books. So if you do want a merit seat, or if you just want to get into a government university, you do have to work hard to get a good MDCAT score. आपके लिए इस तरह नहीं होगा कि my FSC friend says कि 6 घंटे पढ़ो दिन में तो हो जाएगा. It's not that. You do need to put in hours. You can't take a trip to anywhere for like a month and go away. It wouldn't work. So do study the book, do read the book, read the bio book, read the chem book. Physics I wouldn't recommend, but it's up to you. Formulas are very different. If you don't understand anything, go to YouTube में बस सिर्फ इतना भी search करना, topic name, MDCAT, and just like press search, तो आपके पास बहुत सारे lectures आ जाएंगे. There's a variety. एक lecture नहीं समझ रहा है, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो. But in the end, do questions. There's a lot of question bank. Huser just launched its question bank. It wasn't there at my time, so I can't comment a lot about it. MDCAT, you don't need a lot of conceptual questions. आप book पढ़ते हो and then आप questions करते हो, and then that's just recall कि oh I just read के jejunum की length इतनी है, तो वो बस वो आपसे यही पूछेगा MCQ में कि what's the length of jejunum, तो like वो बस वो foreign to recall. And then what I also used to do is like after 3-4 days I used to erase those MCQs and do them again because वो बार बार आते हैं. Then do past papers. I did past papers like 3 times till 2002, so like just do that and you'll be good to go. About देखें वो ये सच है कि FSC के लिए इट्स ईजियर, इट्स मच मोर ईजियर फॉर देन A levels. मगर अगर आपने FSC खुद अच्छी नहीं पढ़ी हुई तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा. सेम गोज फॉर इट. अगर FSC अच्छी पढ़ी है, जैसे मैंने FSC बहुत अच्छी पढ़ी थी, मैंने एज मैंशन AQAB मैंने किया है, तो मेरी तो तीनों बुक्स सही तरीके से पढ़ी हुई थी, तो आई डेंट हैव दैट मच ट्रबल व्हेन डीलिंग विद MDCAT. लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो सीधी सी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा. हाँ, MCQs से ही रिकॉल होगा. जितनी देखो बुक मेरे हिसाब से व्हाट आई डिड, आई रेड बुक सो मेनी टाइम कि मैं इतना अच्छा हो गया था कि बुक आँख में पढ़ पाता था, आराम से पढ़ पाता. 1 हफ्ते में मैं सारी बुक्स 6 की 6 बुक्स पढ़ पाता था. अगर नहीं पढ़ी जाती तो इट्स ओके, नोट्स बनाओ,
सही है नोट फॉर सम पीपल एज शी सेड सम कुछ लोगों के लिए नोट्स वर्क करते हैं, कुछ के लिए नहीं करते, मेरे लिए नहीं करते. So I feel like, yeah, the key is do the book, read the book, because the book is your Bible right now. So like जो भी आएगा book से आएगा, and then do MCQs. I feel like that's like the common point for both of them, right? Yeah. Okay, thank you guys. Best of luck. So this is Shyam. Allah Hafiz.